السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ ڈونٹ فارگیٹ دا بیل آئیکن. آج کی سٹوری ساحل نامی ایک شخص کی ہے. تو سنتے ہیں ساحل کی کہانی ساحل کی زبانی. عشاء کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، چاروں طرف گپت اندھیرا تھا. میں اس وقت کندھے پر کلہاڑا رکھے جنگل کی طرف آگ جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا. آج مجھے دیر ہو گئی تھی، ورنہ تو میں مغرب کے وقت ہی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتا تھا. جنگل میرے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. میں روزانہ مغرب کے وقت جنگل سے واپس آتا تھا. اس وقت میرے ہاتھ میں ایک ٹارچ بھی تھی. جنگل کے گپت اندھیرے میں پہنچ کر میں نے وہ ٹارچ جلا لی اور ایک مناسب درخت منتخب کر کے میں نے درخت کی ایک ملائی شاخ پر کلہاڑے سے ضرب لگائی تو اچانک مجھے کسی کی زوردار چیخ سنائی دی. چیخ کی آواز اس طرف سے آئی تھی جہاں سے میں نے لکڑی پر وار کیا تھا. اچانک شاخ کے کٹے ہوئے حصے سے خون نکلنا شروع ہو گیا. پہلے تو میں سمجھا کہ یہ کوئی مادہ ہے، مگر غور سے دیکھنے پر پتہ چلا یہ تو خون ہی ہے. اچانک مجھے پیچھے سے ایک خوفناک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا تو میرا دل حلق میں آ گیا. خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی. خوف کے مارے میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. میرے سامنے ایک بن مانس کھڑا تھا. وہ بہت ہی خوفناک اور بدبو تھا. اس کا سارا جسم سوائے منہ کے لمبے اور گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا. اسے دیکھ کر مجھے میرا سانس رکتا ہوا معلوم ہوا. وہ خوفناک آواز میں بولا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں نے بھاگنے کے لیے اپنے قدم اٹھانا چاہے مگر میں ناکام رہا کیونکہ میرا پورا وجود خوف کے مارے جم گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں پتھر کا مجسمہ بن گیا ہوں. وہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا اور اب مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ میں اب اس کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا. میرے قریب پہنچ کر اس نے اپنا فولادی ہاتھ میرے چہرے پر مارا اور میں اچھلتا ہوا پیچھے جا گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھا. میرے تمام گھر والے میرے ارد گرد موجود تھے اور ایک خوبصورت چہرے والا اجنبی میرے قریب بیٹھا تھا. میری امی نے کہا، بیٹا تو جنگل میں بے ہوش پڑا تھا، یہ تجھے وہاں سے لے کر آیا ہے. یہ کہتے ہی امی نے اس اجنبی کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی. اس اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے ادا کر دیا. امی نے پوچھا، بیٹا تو بے ہوش کیوں ہوا تھا؟ میں نے جھوٹ بول دیا. میں نے کہا، امی آج میرے سر میں درد تھا. میں جب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا تو راستے میں ایک درخت سے ٹکرایا اور نیچے گر گیا اور شدید درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا. لیکن اب میرے سر میں کوئی درد نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں. میں نے جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں کسی کو حقیقت بتا بھی دوں تو میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا بلکہ میرا الٹا مذاق اڑایا جائے گا. سب کمرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے. اب کمرے میں اور وہ ایک اجنبی آدمی رہ گئے تھے. میں نے پوچھا، کیا آپ ہمارے گاؤں میں نئے آئے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. اس اجنبی نے جواب دیا، ہاں میں تمہارے گاؤں میں نیا آیا ہوں. میں عشاء کے وقت جنگل سے گزر رہا تھا. جنگل میں تمہیں بے ہوش پڑا دیکھ کر میں نے تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا. میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کو میرے گھر کا پتہ کیسے ملا؟ اس اجنبی نے کہا، میرا نام گلریز ہے. جب تم مجھے بے ہوشی کی حالت میں ملے تو مجھے تمہاری جیب سے تمہارے اسکول کا کارڈ ملا. میں اسکول کارڈ کی مدد سے تمہارے گھر پہنچا. پھر وہ میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور 11 بجتے ہی وہ واپس گھر چلا گیا. اگلے دن جب میں اپنی کلاس میں گیا تو مجھے کلاس میں گلریز کو دیکھ کر ایک زور کا جھٹکا لگا. میں نے اسے دیکھ کر کہا، ارے تم! میں نے اسے دیکھتے ہی حیرت کا اظہار کیا. گلریز نے مجھے بتایا کہ اس نے میرے اسکول میں داخلہ لے لیا ہے. آج ہمارے ایک استاد نہیں آئے تھے، اس وجہ سے ایک پیریڈ خالی تھا. اس دوران میں اور گلریز
बातें करते रहे और गुलरेज ने मुझे एक तवीज़ दिया और कहा, जब तक ये तवीज़ तुम्हारे गले में रहेगा कोई शैतान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और हाँ, ये तवीज़ तुम्हें किसी भी सूरत में अपने आप से जुदा नहीं करना है। मैं गुलरेज की बात सुनकर मुस्कुराया और तवीज़ को अपने गले में डाल लिया। इस दिन स्कूल में एक अजीब वाक़या हुआ। वक्फा ख़त्म होने पर मैं खेल के मैदान से दौड़कर अपनी क्लास की तरफ जा रहा था कि एक लंबे लड़के से टकरा गया। मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक था, लिहाजा वो लंबा लड़का तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और औंधे मुंह गिर पड़ा। मेरे मुंह से निकला, माफ़ करना भाई। अब तक मैं इस लड़के का चेहरा नहीं देख सका था। मैं इसे उठाने को झुका, मगर साथ ही इसने मेरे मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारा। गिरने वाला लड़का उमैर था, जो हमारे स्कूल और मोहल्ले का सबसे बड़ा बदमाश था। इसने मुझे मारकर कहा, ले माफ़ी। और माफ़ी चाहिए? ले ले। ये कहते ही मुझे मारने लग पड़ा, लेकिन इसके हाथ को किसी ने मजबूती से पकड़ लिया। मैंने देखा तो गुलरेज ने उमैर का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। उमैर गुस्से में चिल्लाया, ओए छोड़ मेरा हाथ। मगर इस वक्त गुलरेज का दूसरा हाथ हरकत में आया और इसने उमैर को एक खींच के थप्पड़ मारा और उमैर फिर से नीचे गिर पड़ा। उमैर तेजी से खड़ा हुआ और गुलरेज पर छलांग लगा दी। गुलरेज इससे गाफिल नहीं था। गुलरेज एक तरफ हो गया और उमैर फिर से मुंह के बल नीचे गिरा, जिसकी वजह से उमैर के 2 दांत टूट गए। इसके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर कुछ लड़के पीछे से आए और उमैर को और गुलरेज को पकड़ लिया। उमैर गुस्से में बोला, तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ? तू जैसों को रातों रात घर से उठा लूँ। तू समझता है क्या है अपने आप को? जबकि गुलरेज गुस्से से उमैर को घूर रहा था। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई थी। अगर इसे लड़कों ने ना पकड़ रखा होता तो वो उमैर की अच्छी तैसी कर। शाम होते ही मैंने कंधे पर कुल्हाड़ा रखा और एक रस्सी और टार्च लेकर जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने चल दिया। मेरा इस वक्त पूरा वजूद कांप रहा था, क्योंकि मुझे कल का वाक़या याद था। इस वक्त मेरे गले में गुलरेज का दिया हुआ तवीज़ भी था। जैसे ही मैं जंगल के घने हिस्से में पहुंचा तो मेरे पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। सामने वही कल वाला बिन मांस खड़ा था। वो मेरी तरफ बढ़ा और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, फेंक दे फेंक दे। मैंने बहुत हथेलाते हुए पूछा, क्या? वो बोला, मैं कहता हूँ निकाल कर फेंक दे इस तवीज़ को जो तूने गले में पहन रखा है। और ये इसने इस कदर शदीद आवाज़ से कहा कि मेरी रूह कांप गई। मुझे इसी वक्त गुलरेज की बात याद आ गई कि उसने मुझसे कहा था, ये तवीज़ तुमने किसी सूरत भी अपने आप से जुदा नहीं करना है। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं इसे हरगिज़ अपने गले से नहीं उतारूंगा। तो वो बुलंद और खौफनाक आवाज़ में बोला, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही इसने अपना फौलादी बाजू हवा में बुलंद किया तो इसके हाथ में जलते हुए बड़े बड़े अंगारे आ गए। वो गुस्से से बोला, अब तू जलने के लिए तैयार हो जा। उसने हमला करने की नीयत से अंगारे वाला हाथ मेरी तरफ किया। इसका खतरनाक इरादा जानकर मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मैं यकदम जोश में आ गया और चिल्लाता हुआ बोला, नहीं, मैं इसे अपने गले से नहीं उतारूंगा। उसने हमला करने का इरादा तर्क कर दिया और बोला, अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तुझे खानदान समेत तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये सुनते ही मैंने तावीज़ उतार लिया। अभी मैं इसे फेंकने ही वाला था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, नहीं साहिल, ऐसा मत करो। ये आवाज़ गुलरेज की थी। गुलरेज ने मुझसे कहा, साहिल, तावीज़ वापस अपने गले में पहन लो। अगर तुमने इसे अपने आप से जुदा किया तो ये तुम्हें जान से मार डालेगा। इधर से बिन मान चीखा, फेंक दे, इसकी बातों में मत आ। अगर तुम ऐसा करेगा तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं हैरान खड़ा था कि मैं किसकी बात सुनूं। गुलरेज ने मुझसे कहा, साहिल, तुम इसकी बातों में मत आओ। तुम तवीज़ वापस अपने गले में पहन लो। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। अपनी माँ की कसम सुनकर मेरे बेजान वजूद में जैसे जान पड़ गई और मैंने तवीज़ वापस अपने गले में डाल लिया। बिन मांस गुलरेज की तरफ देखकर घूरा और चिल्लाया,
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शरंग। गुलरेज ने कहा, ये तुम्हारी भूल है पुरोहित। ये कहते ही इसका जिस्म एकदम पुरोहित जैसा हो गया। पुरोहित ने अंगारों वाला हाथ का रुख शरंग की तरफ किया तो पुरोहित के हाथ से जो मौजूद अंगारे शरंग की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही अंगारे शरंग के करीब आए तो इसने ऊपर की तरफ छलांग लगा दी। अंगारे इसके नीचे से गुजरते हुए पिछले दरख्तों से जा टकराए और इन दरख्तों पर आग भड़क उठी। अगर शरंग पर वक्त हवा में ना उछलता तो आग के अंगारे इसे जला देते। शरंग ने अपना हाथ पुरोहित की तरफ किया तो इसके हाथ से शिवाई निकली। जैसे ही वो शिवाई पुरोहित के जिस्म से टकराई तो पुरोहित के जिस्म में आग लग गई। इसकी दर्दनाक चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। थोड़ी देर बाद वहाँ पुरोहित की जगह जली हुई राख मिली। शरंग ने अपना हाथ जंगल के इस हिस्से की तरफ किया जहाँ पुरोहित ने हमला कर आग लगाई थी तो इसके हाथ से शवाएं निकली। जैसे ही वो शवाएं जलते हुए दरख्तों से टकराई तो आग हैरत अंगेज तौर पर एकदम बुझ गई। अचानक शरंग गुलरेज में तब्दील हो गया। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और बोला, क्या तुम हकीकत जानना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं एक जिन हूँ और पुरोहित भी जिन था और हम दोनों जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इन दोनों कबीलों के दरमियान कई सालों से झगड़े चले आ रहे हैं। कल रात मेरा छोटा भाई जो नात समझ था खेलता हुआ हमारी दुनिया से तुम्हारी दुनिया में आ गया और इस जंगल के इस दरख्त पर बैठा खेल रहा था जिस दरख्त की कल तुमने लकड़ी काटना चाही थी। इत्तेफाक से पुरोहित और उसका बेटा वहीं से ही गुजर रहे थे। जब इन्होंने मेरे भाई को देखा तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े। जिस जगह तुमने कुल्हाड़े से ज़रब लगाई थी वहाँ पुरोहित का बेटा मौजूद था। वो तुम्हारे कुल्हाड़े के जद में आके अपनी जान से हाथ धो बैठा। पुरोहित को तुम पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि तुमने उसके बेटे को कत्ल कर दिया था। वो मेरे भाई को भूलकर तुम्हें कत्ल करने पर लगा हुआ था। इसी वजह से उसने बिन मांस की शक्ल में आकर तुम पर हमला किया जिसके नतीजे में तुम बेहोश हो गए। मैं अपने भाई की तलाश में जब यहाँ पर आया तो पुरोहित अकेला था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। मेरे छोटे भाई ने सारी बात मुझे बता दी तो हम बहुत खुश हुए क्योंकि तुमने बर वक्त मेरे भाई की जान बचाई थी। मेरे कबीले के सरदार को तुम्हारी बातों का इल्म हो गया और हमें ये भी मालूम हुआ कि पुरोहित तुम्हें कत्ल करने के लिए बेचैन है और वो तुम्हें ज़रूर कत्ल करना चाहता है क्योंकि तुम हमारे मोहसन हो। इसलिए मेरे सरदार ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा। मैं इंसानी शक्ल में आकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा और तुम्हारी क्लास में भी दाखिला ले लिया ताकि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। जो मैंने तुम्हें तवीज़ दिया था वो बहुत मुकद्दस था। इस तवीज़ से शैतान और जिन्नात वगैरह दूर रहते हैं। अब क्योंकि पुरोहित तुम्हें ख़त्म या कत्ल नहीं कर सकता था इसलिए वो तुम्हें गले पे से तवीज़ उतारने को कह रहा था और धमका रहा था कि जब तुम गले से तवीज़ उतारो और वो तुम्हें ख़त्म कर दे। लेकिन मैं यहाँ बर वक्त पहुँच गया और पुरोहित अपने अंजाम को जा पहुँचा। गुलरेज या शरंग वो जो भी था बोला, अच्छा दोस्त, मैं वापस अब अपनी दुनिया में जाता हूँ। मैंने पूछा, क्या फिर तुम मुझसे मिलने कभी आओगे? वो बोला, दोस्त, मैं तुमसे ज़रूर मिलने आया करूँगा। इस वक्त मैं अपने सरदार को पुरोहित के कत्ल होने की खबर देने जा रहा हूँ और ये मुकद्दस तवीज़ तुम अपने पास रखना। शरंग की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज़। मेरी ज़ुबान से बामुश्किल खुदा हाफिज़ निकला और वो वहाँ से गायब हो गया। अब मेरा भी खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।